So now, good morning students. Today I am going to discuss about the rules for the formation of image by the concave mirror. The rules for the formation of image by the concave mirror are: this is the special video for only those students who faces a lot of problem in the rules and the ray diagram of the concave mirror. So this is the special video for them all. Rules for the formation of image by concave mirror. Rules for the formation of image by concave mirror. Okay, so the first rule is that this is the actually concave mirror. Okay, ये concave mirror है, ठीक है ना, और ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. तो if any ray comes parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus. So this is the first rule for the formation of ray diagram. ठीक है ना, रे डायग्राम के फॉर्मेशन के लिए पहला रूल है, जिसमें अगर कोई रे बिंदु से पैरेलल आ जाए तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद. दूसरा रूल है कि इफ़ एनी रे, दूसरा रूल है यहाँ पर हमारा कि अगर कोई रे जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जितना पी एफ डिस्टेंस होगा मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है, जितना पी एफ होगा उतना ही सी एफ होगा, ये डिस्टेंस इक्वल की जाएगी. इफ़ एनी रे एंटर्स टू द फोकस, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. This is the second rule for the formation of image by concave mirror. The third rule is that, थर्ड रूल हमारा दिया गया है, ठीक है ना. So suppose that this is the pole, focus and center of curvature. If any ray enters through the center of curvature, then it reflects back on the same path. It means it retraces its own path and passes through the center of curvature. In this case, the angle of incidence is equal to 0 and angle of reflection is also equal to 0. In this case, the light which falls on the plane mirror at an angle of 90 degree. So the angle of incidence is 0 degree and the angle of reflection is also 0 degree. Now the fourth rule is that the last rule for the concave mirror, and after that we will discuss the ray diagram. The fourth rule is that this is the actually concave mirror, this is the pole, focus and center of curvature. The distance between the PF must be equal to CF. So when any ray falls directly on the pole, then and making an angle of I, that means angle of incidence is equal to angle I with the principal axis. So it reflects back with the same angle and that angle is termed as the angle R. In this case, angle I is equal to angle R because मिरर कोई भी हो, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेशन नहीं हो सकता, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है. तो इस केस में भी एंगल आई इक्वल्स टू क्या रहेगा, एंगल आर रहेगा, ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहेगा. और कोई रहेगा सीधे पोल पर गिर रही तो वहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है. तो ये हमारा कुछ बेसिक रूल्स थे, ठीक है ना. किसके बेसिक रूल्स थे, ये हमारे इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर से. एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट द Now I am going to tell you about the image formation. Conditions for the image formation. Conditions for the image formation by the concave mirror. The conditions for the image formation by the concave mirror, ठीक है ना. तो concave mirror जो है उससे कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए. तो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं उसकी हम पहली कंडीशन को देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट is
kept between pole and focus, P for pole and F for focus। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। 6 कंडीशन बनती हैं इसमें, टोटल कुल मिलाकर 6 कंडीशन बनती हैं, और 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन में सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जबकि हमारी बची हुई 5 कंडीशंस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको 6 रे डायग्राम बनाने होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, रे डायग्राम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ना। किसी भी साल का ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जिस साल रे डायग्राम ना पूछा गया हो। ठीक है ना। या तो वो मिरर से होगा या फिर वो लेंस से होगा। मिरर से कुल मिलाकर 8 रे डायग्राम्स हैं, 6 फ्रॉम कॉनकेव मिरर एंड 2 फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। वैसे ही 8 रे डायग्राम्स लेंस से हैं, 6 फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस एंड 2 फ्रॉम कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि 8 और 8 16 रे डायग्राम्स हैं। 16 रे डायग्राम्स में से कोई भी एक रे डायग्राम, एक या फिर मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है ना। और मैक्सिमम जो है इनका मार्क्स रहता है 5 नंबर का। ठीक है ना। अगर सिंगल रे डायग्राम आया तो 3 नंबर में भी आ सकता है, और अगर 2 रे डायग्राम्स आए तो 5 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, रे डायग्राम्स भी बनाना है, साथ में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो पहली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस। ये देखिए ध्यान से ज़रा, कि पहले तो ये बताइए कि कंडीशंस होती क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। 6 कंडीशन में लगातार बता रहा हूँ, पर वो 6 कंडीशन है कौन कौन सी वो देखिएगा। 6 कंडीशन कौन सी हैं। ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है ना। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। जो कि कहाँ से पास कर रहा है, पोल से पास कर रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बार बार इस चीज़ को रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड F मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द C एंड F। ठीक है। इतना ध्यान रखना है, और स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना है। अभी हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या, मैं 6 कंडीशंस की पहले बात आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर 6 कंडीशंस कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो वो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जो ये पहली कंडीशन है। ठीक है ना। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पहली कंडीशन क्या होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा गया हो। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F। ठीक है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F। नंबर थर्ड कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F। थर्ड कंडीशन होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F, और जो ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होता है। नंबर फोर्थ कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट C, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। नंबर 5 कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड C, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, बियॉन्ड C रखा होता है। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट when the object is capped at infinity, when the object is capped at infinity, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पर रखा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। मैं आपसे सीधी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस केस में, ठीक है ना, किसी भी मिरर या लेंस के लिए जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोर देन 10 मीटर दूर रखा हुआ हो, कितना रखा हुआ हो, मोर देन 10 मीटर दूर रखा हुआ हो, तो आप समझ जाना उस चीज़ को कि वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यानी किसी भी मिरर या लेंस के लिए 10 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस इन्फिनिटी ही मानी जाती है, भले उसका कुछ भी फोकल लेंथ हो। ठीक है ना। फोकल लेंथ इतना बड़ा तो नहीं होगा, मिरर और लेंस कोई बहुत बड़ा तो बना नहीं सकते। तो 10 मीटर से दूर की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इन्फिनिटी पे ही आएगी। खैर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अभी हम उसको देखते हैं। ठीक, कुछ मिरर्स के लिए हम कह सकते हैं, जो बहुत ही बड़े मिरर्स होते हैं उनके लिए हम 20 मीटर या 30 मीटर की डिस्टेंस इन्फिनिटी पर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल साइज मिरर के लिए जो है वो हम 10 मीटर की डिस्टेंस को ही, छोटा सा मिरर जो होता है उसके लिए हम 10 मीटर की डिस्टेंस को ही जो है वो इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोर देन 10 मीटर दूर रखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो 6 कंडीशंस मैंने आपको एक ही करके एक्सप्लेन कर दी। पहली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। नंबर सेकंड कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
kept at focus. Number third condition, when the object is kept between the center of curvature and focus. Number fourth condition is there when the object is kept at C. Number fifth condition, when the object is kept beyond C. And number sixth condition, when the object is kept at infinity. तो हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, when the object is kept at between pole and focus. जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हमको बहुत सारे रूल्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है ना। एक रे यहाँ से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है ना, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अभी जो है, अगर मैंने रूल 1 में बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। और ये रे वास्तव में फोकस से पास कर रही है, ठीक है, फोकस से पास करनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। फोकस से जो हमारा ये है, ठीक है, यहाँ से फोकस से वो क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है, फोकस से पास कर रही है। दूसरा ये है कि अगर कोई रे जो है वो सीधे परपेंडिकुलर फॉल होती है मिरर पे, कैसे गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे पास करेगी वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और वो वहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है ना। यानी रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो इफ़ एनी रे फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई। अब आप देख सकते हैं दोनों रे क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। जब दोनों रेज एक दूसरे से दूर दूर जा रही होंगी तो फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस केस में कभी भी ये दोनों रियल रेज, दीज आर द रियल रेज, ठीक है ना, ये रियल रेज हैं, रियल रेज एंड रियल रेज आर डाइवर्जिंग। रियल रेज आर एक्चुअली डाइवर्जिंग, रियल रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। इफ़ दे आर डाइवर्जिंग सो देन दे विल नेवर मीट। वो जब डाइवर्ज करेंगी तो कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो अपोजिट साइड में जब हम उनको क्या करेंगे, जो उनकी हम वर्चुअल रेज हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो जहाँ पर दोनों रेज की वर्चुअल रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, ए डैश एंड बी डैश, इमेज का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ वर्चुअल रेज। दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ virtual rays. This image is formed by the meeting of virtual rays. So the image, the nature of the image is virtual and erect. Virtual and erect. Erect क्यों है, इरेक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, वर्चुअल समझ में आता है भाई। वर्चुअल के दो कारण हैं हमारे पास, इस नेचर के वर्चुअल होने के दो कारण हैं हमारे पास। पहला कारण तो ये है कि ये इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। पहला कारण तो ये है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो वर्चुअल है, समझ में आता है। दूसरा कारण ये है इसके वर्चुअल होने का कि दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ वर्चुअल रेज। ये इमेज जो है वो वर्चुअल रेज की मीटिंग की वजह से बन रही है, इसलिए ये वर्चुअल है, समझ में आता है। तो वर्चुअल के दो कारण हैं, लेकिन इरेक्ट का क्या रीज़न है, वाई इट इज़ इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का कॉम्बो रहता है, ये तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल डैम श्योर बात है, याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। अब वर्चुअल अगर है तो साथ में इरेक्ट रहेगा, लेकिन इरेक्ट का रीज़न भी पता होना चाहिए। इरेक्ट का रीज़न ये है, द इमेज इज़ फॉर्म्ड above the principal axis. Actually this image is formed above the principal axis. ये इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है। जब ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ फॉर्म होगी तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है, कि ये इमेज जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रही है तो ये क्या इरेक्ट है। ए पॉइंट ऊपर था और ए डैश पॉइंट भी कहाँ है, ऊपर है, इसीलिए ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है ना। ए डैश पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, बी डैश कहाँ है, नीचे की तरफ है, लेकिन बट ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के एबव फॉर्म हो रही है, इसलिए बिल्कुल सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है ना, सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज है। सो दैट्स वाई दिस इमेज इज सेट टू बी इरेक्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की। तो इमेज के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में, ठीक, हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन जो है हमारा क्या होता है, नेचर होता है,
नेचर होता है, नेचर होता है। नंबर सेकंड हमारा साइज होता है, और नंबर थर्ड हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है। नेचर, साइज एंड पोजीशन। ठीक है, नेचर क्या है इसका, इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज के बारे में बताइए आप, साइज के बारे में ज़रा बताइए आप, बताइए साइज़ कैसा है, छोटा बन रही है इमेज या बड़ी बन रही है। आपको देखने से भी मालूम पड़ रहा होगा इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। और इमेज अगर बड़ी है, अगर इमेज कैसी है, बड़ी है, तो देन वी हैव टू राइट इट मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, देन वी हैव टू राइट मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वर्चुअल रेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, दोनों को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी डार्क लाइन से नहीं बनाएंगे, डार्क लाइन से हमेशा रियल रेज बनती हैं। जो वर्चुअल रेज होती हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से बनाई जाती हैं, चाहे वर्चुअल रेज हो या वर्चुअल इमेज हो, ठीक है ना। सो साइज ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइड, और यू कैन से एनलार्ज्ड, और एनलार्ज्ड। ना पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या है इमेज की। द इमेज इज कहाँ पर बन रही है इमेज, इमेज इज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। और जब पीछे की तरफ बनेगी जाके तभी उसका जो है वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। पीछे की तरफ बनेगी तभी नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कोई समस्या, ठीक है। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है ना। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द नेक्स्ट कंडीशन, द सेकेंड रे डायग्राम, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, फोकस पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं वो देखिएगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाएगी। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल जाएगी तो इमेज की पोजीशन भी बदल जाएगी, और जब इमेज की पोजीशन बदल जाएगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नंबर सेकेंड रे डायग्राम इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट एफ, एफ मीन्स फोकस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होगा तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है। और ये हमारा क्या है, होल है, ठीक है। ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। होल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एफ है, ठीक है ना। ये फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस पे रखा है, ठीक है ना। अभी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एक रे ए पॉइंट से ओरिजिनेट होगी, और वो रे किससे पास करेगी, ए बी ऑब्जेक्ट है, बी पॉइंट यहाँ बनाइए, वो रे किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये रूल 1 का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। रूल 1 स्टेट्स अस दैट, रूल 1 हमें बताता है इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। रूल 1 है। नाउ द सेकेंड रूल इज दैट इफ एनी रे फॉल्स परपेंडिकुलर, if any ray falls perpendicular on the mirror then after reflection it passes through the center of curvature। किससे पास करेगा, center of curvature से पास करेगा, ठीक है ना। then it must passes through the center of curvature, center of curvature से पासिंग होगी जाके, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। and these two real rays are, now real rays are parallel to each other, parallel to each other। रियल रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। और जब रियल रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के, दिमाग लगाइएगा, ठीक है,
रियल रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो हम भाई पैरेलल रेस कभी मीट करती हैं, बताइए। मैथमेटिक्स ये कहता है कि पैरेलल रेस कभी भी मीट नहीं करती, बिल्कुल सही कहता है, मैथमेटिक्स गलत नहीं कहता। लेकिन अगर मीट नहीं करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है ना। बिकॉज द इमेज इज़ ओनली फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू रेज, दो रेज की मीटिंग से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान के चलेंगे, हम ये लेट करके चलेंगे कि ये दोनों रियल रेज हैं, ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके मीट करेंगी, और जहाँ इन्फिनिटी पे कहीं मीट करेंगी जाकर, ठीक है ना, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। और ये दोनों रेज कहाँ मीट करेंगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ मीट करेंगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जाके कहीं मीट करेंगी, ठीक है ना। इसलिए इमेज जो होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी जाके। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वहाँ तक की जो लेंथ है परपेंडिकुलर, वही इमेज की हाइट हो जाएगी। इसलिए इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी जाकर। अच्छा, ये दोनों रेज तो पैरेलल हैं, तो मीट कैसे करेंगी, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द टू रेज विल मीट, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दोनों रेज क्या करेंगी, मीट करेंगे। और कहाँ पर मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। तो रियल रेज आर हियर, रियल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, and these two real rays will appear to meet at infinity, so the image is formed, at infinity। इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन्फिनिटी पर फॉर्मेशन होगा इमेज का। सो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज जो है वो सेम साइड है, बिहाइंड नहीं है। अगर बिहाइंड होती, पीछे की तरफ, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर आप रियल रेस को मीट करा रहे हैं, वर्चुअल रेस को भी तो मीट करा सकते हैं पीछे, वर्चुअल रेस काहे नहीं लगे पीछे। बेटा वर्चुअल रेस कभी मीट नहीं करती, ठीक है ना। वर्चुअल रेस, सॉरी, कभी जो वर्चुअल रे, रियल पैरेलल रे तो मीट कर सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रियल रेस से तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्चुअल रेस से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए पैरेलल वर्चुअल रेस कभी मीट नहीं करती, इसलिए पैरेलल वर्चुअल रेस कभी मीट नहीं करेंगी। पैरेलल रियल रेस तो मीट कर जाएंगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा तो रियल रेस कहीं मीट कर सकती हैं जाकर, ठीक है। तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। Now size of the image is highly magnified, and the position is, the image is formed at infinity, the image is formed at infinity in front of the mirror। क्या लिखेंगे, in front of the mirror, या आप लिख सकते हैं सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा मैं कैमरा को नीचे करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड रे डायग्राम। नाउ द थर्ड कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, ठीक है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, when the object is kept between the center of curvature between C and F, C means center of curvature and F means focus। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है ना।
वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो को, ठीक है ना। पेशेंसली देखिएगा, साथ में रे डायग्राम्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ, ठीक है ना, क्योंकि रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप साथ में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ वीडियो को देखते हुए रे डायग्राम्स को बनाइएगा, ठीक है ना। आपको सारे रे डायग्राम्स बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे, लेकिन बीच में स्किप करेंगे, सीधा लास्ट पार्ट देखने की कोशिश करेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है, फोकस है, एफ इज़ द फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने फर्स्ट रूल का यूज़ किया, एक रे ऑरिजिनेट हुई ए पॉइंट से, एक रे ऑरिजिनेट हुई है, रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। यू हैव टू यूज़ द स्केल, स्केल का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, तभी लाइन स्ट्रेट आने वाली है आपकी, ठीक है। अदरवाइज मेरी तरह टेढ़ी एड़ी आती रहेगी। मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं कर सकते, बट आपके पास है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, फिर मैंने कोशिश की स्ट्रेट लाइन बनाने की, ठीक है ना। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो किससे पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। रूल 1 यूज़ कर लिया। अब मैं रूल, कोई भी बचे हुए 3 रूल्स में से कोई भी एक रूल इस्तेमाल करूँगा, और जिससे, क्योंकि किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए मिनिमम 2 रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं रूल 2 का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक रे ऑफ लाइट जो है वो ए पॉइंट से ऑरिजिनेट हुई, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। तो फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा इमेज हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और इमेज हमारी क्या है, बी डैश एंड ए डैश, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बी है, और इमेज क्या है, बी डैश ए डैश है। इमेज कहाँ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि सामने की तरफ है, पीछे नहीं है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है ना। साइज़ क्या है, साइज़ मैग्नीफाइड है, ठीक है ना, बड़ा बना, बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या एनलार्ज कह सकते हैं आप। उसके बाद पोजीशन क्या है, पोजीशन है बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगी जाके, बियॉन्ड सी बनेगी, सी से पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है ना। ये रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। सी से पीछे की तरफ बन रही है ना। द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, द फोर्थ रे डायग्राम इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब सी पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, ठीक है ना। ये फोर्थ रे डायग्राम है हमारा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर है ये, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी पर रखा, ऑब्जेक्ट सी पे रखा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है ना, क्योंकि जो रे ऑरिजिनेट होगी ये पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, और वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और दूसरा रे फोकस से जाएगी, ठीक है ना, फोकस से जाएगी, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ पर दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली मैंने सी पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लिया, ठीक है। स्केल का यूज़ नहीं है, बस इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पर इमेज का, जहाँ पर दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए एक रे जो है वो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। 2 रूल्स लगे हैं यहाँ पर। पहला रूल, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, रूल 1। दूसरा, जब रे सीधा कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। एरो जरूर बनाइएगा, अगर एरो नहीं बनाएंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो इमेज बना है यहाँ पर वो बना B डैश एंड A डैश, ठीक है। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा? नेचर ऑफ द इमेज तो वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। रीज़न क्या है? रियल इसलिए क्योंकि सामने की तरफ इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे की तरफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज़ की, ठीक है। साइज़ क्या है इमेज का, ठीक है। साइज़ के बारे में बात करते हैं। साइज सेम साइज़ है, क्या है? सेम साइज़ है, ठीक है। केवल दो ही मिरर्स ऐसे हैं जो कि सेम साइज़ इमेज बना सकते हैं। पहला तो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, जो हर बार हर केस में, ठीक है ना, सेम साइज़ इमेज बनाता है, लेकिन वो सेम साइज़ इमेज जो होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। बिकॉज द नेचर ऑफ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बट इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज़ same size as like the object, but the nature of the image here is real and inverted। इस केस में इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। लेकिन उस केस में नेचर क्या होगा? हाँ, दोनों सेम साइज़, बस नेचर का फ़र्क है। वहाँ पर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो जैसे आप खड़े हैं वैसी इमेज बनेगी। यहाँ सेम साइज़ तो बनेगी जाके, लेकिन कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो साइज़ जो होगा इमेज का वो सेम साइज़ होगा, ठीक है ना। और जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा ना। पोजीशन, सो वेयर द इमेज इज़ फॉर्म्ड, तो ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, इमेज भी सी पर ही बनेगी। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? सी पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज, ठीक है ना, अभी हमारा फोर्थ रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप इसको पॉज कर करके बीच में देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं उसको क्लियर जरूर करिएगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन द फिफ्थ कंडीशन इज दैट, फिफ्थ रे डायग्राम इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी के बियॉन्ड रखा है। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा है, तो ए पॉइंट से एक रे ऑरिजिनेट होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और वो टकराने के बाद किससे पास करेगी? रिफ्लेक्ट, टकराना मतलब रिफ्लेक्शन के बाद किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। फोकस है भाई, फोकस से पास कर रही है। दूसरा आप देख सकते हैं एक रे जो है वो कहाँ से पास करेगी? सीधा फोकस से पास करेगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 का यूज़ हो गया है यहाँ पर। रूल नंबर 1 का यूज़ ये रहा, एक रे आई सीधे फोकस से पास की। रूल नंबर 2 का मतलब फोकस से आई तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जहाँ पर दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, लेकिन इमेज जो होगा वो क्या होगा? बी डैश एंड ए डैश, ठीक है। बी डैश एंड ए डैश इमेज का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिएगा, ये इमेज जो है, ठीक है, ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या नेचर होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज क्या है इसका? साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी इमेज बन रही है, या आप कह सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर बात करता हूँ पोजीशन की, तो पोजीशन इमेज कहाँ बन रही है? इमेज जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, तो जो इमेज बनेगी वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा फिफ्थ रे डायग्राम था। ये रे डायग्राम है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों मिलाकर 5 नंबर में आते हैं। इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर इज दैट
when the object is capped at infinity, when the object is capped at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? जब इन्फिनिटी पर रखा होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा होगा तो क्या होगा, ठीक। ये रे डायग्राम जो है वो अलग अलग किताबों में अलग तरीके से दिया गया है, बट वी ऑलवेज प्रेफर एनसीईआरटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से, नॉर्मल मिरर से 10 मीटर दूर रखा हुआ हो, कम से कम 10 मीटर दूर रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट वो क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी पर कहलाएगा, ठीक। इन्फिनिटी कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डायग्राम दिया गया, लेकिन हम एनसीईआरटी के साथ ही चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। एंड दिस इज एक्चुअली द होल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? होल है। एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो रेज आएंगी वहाँ से वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल रेज होंगी, ठीक है ना। यानी द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एज वेल एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं वो हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं वहाँ से। तो इस केस में भी रेज कैसी आ रही होंगी? पैरेलल आ रही होंगी। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑल दीज रेज पासिस थ्रू द फोकस। तो सारी की सारी रेज कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। एंड ऑल रेज विल मीट एट द फोकस, और सारी रेज कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे मीट करेंगी। और आपको पता होना चाहिए जहाँ पर रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पता ही होना चाहिए जहाँ पर रेज मीट करती हैं वहीं पर क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पर होगा। अच्छा, ये इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, सामने की तरफ बन रही है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ जो है वो उसका क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी जाके, बहुत छोटी इमेज बनेगी जाके। हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। और पोजीशन क्या है? इमेज बनेगी कहाँ पर? एट एफ, जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल समझ लीजिए। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज इन्फिनिटी पर थी, अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ है? फोकस पर है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इस तरीके से, ठीक है ना, हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो रेज पैरेलल आएंगे, पैरेलल रेज कहाँ मीट करेंगी? फोकस पर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पर होगा। इमेज का साइज़ क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, और इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट एफ, ठीक है ना। ये 6 रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम्स आर कंप्लीटेड ऑफ द कॉनकेव मिरर. So you all are requested to watch again and again and to learn and practice all these ray diagrams because these are very much important for you all. And if you and guys, if you feel that this video is very much important for you, then please like this video, share it as possible as you can, okay? And because it will motivate me to form such more videos on the very most important topics of physics, okay? And if you still if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it, okay? Thank you, have a good day.